After long reflection in solitude and meditation, I suddenly had the idea during the year 1923 that the discovery made by Einstein in 1905 should be generalized by extending it to all material particles and notably to electrons. This is the statement of Louis Victor de Broglie, who proposed the idea for the matter wave, for the particles. De Broglie waves, that is known as matter waves. क्या है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी? ये डिस्कस करना है इन स्लाइड्स के अंदर कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है और मैटर वेव्स क्या हैं, क्या ओरिजिन है उनका, उस और किस तरीके से ये डी ब्रोगली वेव्स को वन कैन अंडरस्टैंड एंड कैन एक्सप्लेन फर्दर. सो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का जो आइडिया डी ब्रोगली के थ्रू जनरेट हुआ, दैट इज रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. The A category of the experiments are black body radiation, photoelectric effect, and Compton scattering. All these experiments actually explain using the concept of photon, picture of light. And second category of the experiments in which diffraction or interference related phenomena are explained by using the wave nature concept of the light. So there are two concepts of the light. One is related to the photon as a particle and second is related to the wave nature. So light has a dual nature. In some cases it behaves as a wave and in other cases it behaves as a photon. So dual nature of the light, वो क्या है? एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है? वेव नेचर है. बिकॉज ऑफ दैट वी से कि ये ड्यूअलिटी है, एक पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है. सो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स the dual nature of the light, that is sometimes known as electromagnetic wave, define the dual nature, particle nature as well as of wave nature. So in 1924 लुइस डी ब्रोगली ने बेसिकली ये आइडिया प्रपोज किया कि जो लाइट है उसके पास में दो टाइप की नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर. सो इफ वन कैन find out the energy and momentum of a photon, so here I have mentioned that E is equal to h nu. Energy of a photon explain होता है with the this formula where h is the Planck constant and nu is the frequency. If I have to find out the momentum of the photon particle, so photon is a massless particle, there is no mass, rest mass of the photon is 0, so I have to use this formula P is equal to E upon C according to the relativity. So this E is energy of the photon, that is h nu, so h nu upon C. Further, if I put the value of nu, that is C upon lambda here, that is C upon lambda. So when I put the value of C upon lambda here, this C cancel out and as a result I get क्या मिलेगा? ये P is equal to h upon lambda. So momentum of the particle is equal to h upon lambda. So these two equations are important in de Broglie waves. But these origin क्या है इन दो इक्वेशन का? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो लाइट है. लाइट को ही बेसिकली हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में डिफाइन करते हैं. और यहाँ पर लाइट को जब मैं फोटोन की टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ, देन एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट इज ए फोटोन इज इक्वल टू h upon lambda. We know
कि energy and momentum are the characteristics of the particle and nu lambda are the characteristics of the waves. These are in left hand side of these two equation. Here you see E in left hand side, here you can see that is momentum P. These basically two parameter define the characteristics of the particle, and this right hand side, this nu and this lambda are related to the waves. So by this way you can see here that these properties, these characteristics of the particle and the characteristics of the wave are related by H, through this H. So this idea basically which came from the electromagnetic waves कि अगर लाइट ड्यूअल नेचर रख सकती है तो मैटेरियल पार्टिकल के पास भी एक वेव होगा जिसको डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि वो मैटर वेव्स होगा, और उन मैटर वेव्स को हम डी ब्रोगली वेव्स बोलते हैं। तो डी ब्रोगली जो वेव्स हैं वो वेव नेचर भी शो करती हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो नाउ इन 1924 Louis D. Broglie suggested or extended this idea for the material particles. Material particles जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल, जैसे अभी एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया है बॉलिंग बॉल्स का एटसेट्रा। कोई भी मटेरियल जो पार्टिकल है उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होगी जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv के होगी। m is the mass of the particle and v is the velocity, h is the Planck constant. So this is an extended idea of the de Broglie wave for the materialistic particles. So इस स्लाइड के अंदर फर्स्ट पॉइंट पे ये डिफाइन किया कि जो ड्यूअल नेचर थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में एसोसिएट थी, लेकिन बाद में लुइस डी ब्रोगली ने इसको मटेरियल जो पार्टिकल्स हैं उस वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया विद दिस फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव हियर, राइट. h is the Planck constant, m and v are these related thing. v is the velocity of the particle, mass of the particle. So in left hand side is what? In the left hand side there is a wave, in the right hand side there is a momentum of the particle. So by this formula a wave nature and particle nature are associate. So right, value of the Planck constant is 6.625 into 10 raised power minus 34 joule second. Now this expression, this formula lambda is equal to h upon mv, this expression basically is different for different situations. You can see here the expression for the de Broglie wavelength may be expressed in different ways in different situations. These are, अब ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, ये फार्मूला कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं उसके कुछ केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं. सो नंबर वन, दिस ए केस इन विच यू सी ए पार्टिकल ऑफ मास m और उस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं F. एज ए रिजल्ट ही डिस्प्लेस एंड एक्वायर द वेलोसिटी v, right. This is a classical situation, and when you apply the force, as a result this particle acquire the kinetic energy. That kinetic energy you define by this formula 1 by 2 mv square. Further, if I multiply and divide it by m, then it is m square v square upon 2m, that is equal to p square upon 2m, because you know that p is mv. So m square v square will be equal to p square upon 2m. So kinetic energy one can write in terms of the p square upon 2m also.
फ्रॉम दिस फार्मूला मुझको क्या करना है कि ये जो P की वैल्यू है इसको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो फ्रॉम दिस रिलेशन आई कैन राइट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो P की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये P की वैल्यू होगी और इस P की वैल्यू को जब मैं डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वहाँ P की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास में एक ये सेकंड टाइप का फार्मूला होगा फॉर द क्लासिकल पार्टिकल्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। So if I know the kinetic energy of the particle, that value I can put here, mass of that particle and Planck constant, one can find out the de Broglie wavelength associated with that particle. So this was the first type of formula and first situation जहाँ क्या किया है कि कोई भी नॉर्मल पार्टिकल है जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो डिस्प्लेस होता है और कुछ जो वर्क डन हुआ है ऑन द पार्टिकल दैट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो वो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है और पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके साथ एक डी ब्रोगली वेव एसोसिएट होगी। तो अगर पार्टिकल इज इन मोशन देन दैट टाइम ए डी ब्रोगली वेव विल बी एसोसिएट विद दैट and one can find out that then de Broglie wavelength. So this was the idea. The second situation here you can see, अब क्या है कि यहाँ पे इस केस के अंदर क्या है कि ये एक आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक कैथोड है, ये कैथोड आपका कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है और इसको हाई पोटेंशियल पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इजेक्ट फ्रॉम द कैथोड प्लेट। इस पॉइंट से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, V को इंक्रीज करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है विल स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द एनोड और जितना आप पोटेंशियल देंगे उतनी ही स्पीड से ये मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एनोड। और इस तरीके से आप भी देखेंगे कि पोटेंशियल को आप जैसे इंक्रीज करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन दी कैथोड एंड एनोड उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये सेकंड सिचुएशन है, ये सेकंड केस है जहां आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू आप काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल के जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेव है, वेवलेंथ। सो ये सेकंड केस हुआ, ये सेकंड सिचुएशन हुआ कि अगर मेरे पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से रिलेटेड जहां मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूं बाय चेंजिंग द पोटेंशियल, तो उस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी उसको कहाँ से मिली? ये काइनेटिक एनर्जी मिली उसको दिस EV through this energy EV. So kinetic energy is equal to, you can write here EV, where E is the charge of the electron and V is the potential. So now from that earlier formula we know that P is equal to square root 2m and kinetic energy. Here I have defined kinetic energy in terms of the electron volt. So I will put that value electron volt as it is mass of the electron. So now momentum of these electron which are accelerating in between this field, so that P is equal to square root 2m EV. I will put this P in the de Broglie formula, that is lambda is equal to h upon P. So when h lambda
is equal to h upon square root 2m ev. So this was the second situation. पहली सिचुएशन में पार्टिकल को सिंपली फोर्स लगाया और वो पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली, और यहाँ पे जो पार्टिकल इन मोशन है वो पार्टिकल को हम लोगों ने बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है उसको वेरी करके हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट. एंड द थर्ड सिचुएशन इज दिस वन. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कंसेप्ट है, और यहाँ पे एक बॉक्स, ये बॉक्स कंसिडर किया है. इन दिस बॉक्स बेसिकली देर आर सम एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल यू कैन कंसिडर. सो ये गैसियस पार्टिकल यू कैन एज्यूम रेड कलर इंडिकेट टू दी एटम को इंडिकेट कर सकता है, मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं कुछ भी गैस के. अब देखिए, अगर ये कोई टेम्परेचर है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई एक्सटर्नल यहाँ पे थर्मल एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो ये अपनी रैंडम मोशन होगा इन पार्टिकल्स की. लेकिन जैसे ही आप इनको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो ये पार्टिकल रैंडमली इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी टू दैम. ये एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी हो सकता है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है. तो दिस इज द थर्ड सिचुएशन कि व्हेन द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम थर्मल एनर्जी. तो आप थर्मल एनर्जी के थ्रू यहाँ पे एक्सेलरेट किया है, तब ये जो एनर्जी होगी इसको आप डिफाइन करेंगे के ई इज इक्वल टू 3/2 kT, where K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. Value of K is 1.38 into 10 raised power minus 23 joule per Kelvin. This value is important if this kind of situation is given to you, then you have to use this formula. So now again you can find out the momentum of these particles in this particular case, and when you will put the value of kinetic energy, that is 3/2 kT, so it becomes, momentum becomes square root 3m kT, where m is the mass of the particle and k is the Boltzmann constant and T is the temperature. So this is formula for the de Broglie wavelength, which is associated with the these kind of particles, where you found this situation related to the kinetic theory of gases, right. So this was the third formula of the de Broglie wavelength. Now by a simple example I will try to explain the de Broglie wave. A body of mass 1 kilogram is moving with the velocity of 10 meter per second. What will be the de Broglie wavelength associated with this body? So in this numerical problem, what is given? Only mass, that is 1 kilogram, and velocity of 10 meter per second only. I have to find out the de Broglie wavelength. क्या किसी भी पार्टिकल के साथ में हैवी पार्टिकल है या लाइट पार्टिकल है या किसी भी मास का पार्टिकल है, एक de Broglie वेव एसोसिएट होगी? यस. मेट्रोवेव्स मीन्स कि कोई भी पार्टिकल है, किसी भी मास का है, अगर मोशन में है, मूव करता है, तो उसके साथ में de Broglie वेव एसोसिएट होगी. अब इस केस के अंदर de Broglie वेवलेंथ कितना है ये देखना है. ये फार्मूला हम लोगों के पास में है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर वी नो दैट एच इज इक्वल टू WHERE, H is equal to 6.625 into 10 raised power minus 34 joule second. Mass is 1 kilogram, velocity is 10 meter per second. So all these are units in SI system. So after simplifying it, the lambda is equal to 6.625 into 10 raised power minus 35 meter. Because joule, if I consider here joule, so joule is equal to kilogram into meter square per second square. This is the simplification of unit, right. So the unit of wavelength is meter. So how basically I simplified this, that I have shown
in right hand side. This is that point only. So here the de Broglie wavelength associated with the 1 kilogram mass of an object is this is that basically object which है mass 1 kg and you can understand कि इसका ये कोई भी मैटर हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ये वुड हो सकता है, ये वुडन मटेरियल हो सकता है, ये आपका आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कोई भी ये एक मैटर हो सकता है। लेकिन इस मैटर का एक अपना डेफिनिट जो है साइज तो होगा, वो डेल्टा एक्स या हम किसी भी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक अपना साइज होगा, राइट। तो अब उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो वैल्यू आया है वो 10⁻⁻35 मीटर है, दैट इज वेरी स्मॉल। बट ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज इफ मास इज ऑफ 1 किलोग्राम, आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास 1 किलोग्राम है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। तो ये कंसेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का या मैटर वेव्स का कंसेप्ट तभी वैलिड है अगर साइज ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल टू दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻35 मीटर। एंड साइज अगर मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम का है तो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर मिनिमम डायमेंशन मुझको चाहिए, एंड दैट्स हैव 10⁻⁻2 मीटर। सो 10⁻⁻2 मीटर is the dimension, that is the size, one side of the matter। और उधर दूसरी साइड में अगर ये बॉडी ये जो 10⁻⁻2 मीटर की डायमेंशन के साथ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो इसके साथ में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी है 10⁻⁻35, तो बोथ आर नॉट कंपेरेबल। सो ये जो लिखा है इस साइड में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव वैलिड होगी तभी अगर साइज ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। अगर नहीं है तो इट मीन्स वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट ड्यूअल नेचर विद दिस मैटर। ये ड्यूअल नेचर कब दिखाई पड़ेगी, अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द वेवलेंथ डायमेंशन ऑफ द वेवलेंथ आर कंपेरेबल, तो ओनली देन वन कैन ऑब्जर्व द ड्यूअल नेचर रिलेटेड टू दैट पार्टिकल। सो जनरल अपनी जो नॉर्मल लाइफ है हम लोग नहीं देख पाते कि किसी पार्टिकल के साथ में ड्यूअल नेचर है, कि वो वेव नेचर शो करता है, उसका रीजन ये है। अब ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में जहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन है ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम का इज मूविंग with the velocity of 10⁵ meter per second. I have to find out the de Broglie wavelength. So given these two things, mass and velocity, right, I have to find out this de Broglie wavelength. Formula is this one, lambda is equal to h upon mv. When I will put the value of these things, 6.625 into 10⁻⁻34 joule second is for the h, Planck constant. 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram mass of the electron, speed of the electron 10⁵ meter per second. So lambda associated with the electron is of the order of 10⁻⁹ meter, right? And now I have to check that this electron for which de Broglie wavelength is
10 raised power minus 9 meter will show the dual nature or not. ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेवलेंथ अभी 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर आई है, क्या ये इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर शो करेगा? इलेक्ट्रॉन वी नो एग्जिस्ट इनसाइड द एटम, और एटम की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है अप्रोक्सीमेटली 10 रेज पावर माइनस 10 मीटर. Size of the atom is 10 raised power minus 10 meter. So delta x, basically I can write here that is 10 raised power minus 10 meter, and the wavelength is 10 raised power minus 9 meter. So this electron will show the dual nature because dimension of the atomic size and the wavelength associated with the electron are comparable. So this electron will show both kind of nature, wave nature as well as of पार्टिकल नेचर. इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर भी शो कर सकता है. इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड. सो मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो किसी भी पार्टिकल के साथ में एसोसिएट हैं. इट मीन्स कि हम लोग ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट की है तो वो कितनी है, क्या वो कंपेरेबल है टू द डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल, उसकी जो साइज है उसके कंपेरेबल है, तब वो ड्यूअल नेचर शो करेगा इन नेचर. अगर वो कंपेरेबल नहीं है तब वो ड्यूअल नेचर शो नहीं करेगा. So this is the main idea of the de Broglie waves, right? So thanks for watching this video. If you have any question or doubt related to this de Broglie wavelength or matter waves or on any other word related to this concept, you can message me below this video. Thanks for watching again.